Hello everyone, welcome to our channel Chemistry Academy for IT JEE and Main. JEE Main Revision Series Day 19 Carboxylic Acid and Derivatives Chapter आज हम करने जा रहे हैं। यह चैप्टर हम दो पार्ट्स में करेंगे। पार्ट 1 में हम सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, वेदर इट इज फिजिकल और केमिकल, ये पूरा पोर्शन डिस्कस करेंगे along with its POC, practical organic chemistry. Part 2 will be dedicated towards the acid derivatives, that is ester, anhydride, एसिड क्लोराइड एंड अमाइड्स, इनकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पर डेडिकेटेड होगा। ये पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट इज ओनली अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड POC. Before I start, let me remind you, if you like our video, do not forget to hit the like button in the end. Please share our channel with your friends, family and peers. Do not forget to subscribe our channel if you haven't subscribed it yet. So let's start carboxylic acids part 1. So carboxylic acid, this particular word जो है carboxylic acid, this is derived from combination of two words. The word carboxyl में आपको दो sound आपको मिलेगा. Carbo is carbonyl and XYL is from the word hydroxyl. क्योंकि these are combination of carbonyl and hydroxyl groups, that is why the name is given like this, carboxyl. Okay, अब compounds जिनके पास ये particular functional group होगा COH, वो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाएंगे। हाँ, ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये एलिफेटिक होंगे या ये एरोमेटिक होंगे। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स मतलब द अल्काइल पार्ट, द RCOOH में R part if is aliphatic alkyl, then it is known as aliphatic carboxylic acid. If this R is aromatic, that is if it is PHCOOH ऐसा अगर है, then it is called aromatic carboxylic acids. Aliphatic carboxylic acids में भी अगर हम C12 और C18 के बीच के कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, जो काफी बड़ी साइज के हो गए हैं, जो यूजुअली फाउंड है उनकी तुलना में, तो इन्हें हम कहते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स नेचुरली अवेलेबल फैट्स के तौर से जो नेचर में फैट्स हैं उसमें एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक, इनका IUPAC नेम आप एक बार जरूर रिवाइज करें। अगर आप चाहें तो हमारा रिविजन सीरीज में IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला वीडियो देख सकते हैं। वहां हमने इस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड के स्पेशल सफिक्स और नॉर्मल सफिक्स के सारे डिटेल्स डिस्कस कर रखी हैं। खैर, एक बार स्पेशल सफिक्स में यहाँ फिर से याद दिला दूं, स्पेशल सफिक्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है वो कहलाता है खुद कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका स्पेशल एग्जाम्पल जो NCERT में है वही हम रिपीट करें दोबारा, वो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। And this particular compound IUPAC name is propane 1,2,3 tricarboxylic acid. It is called propane 1,2,3 tricarboxylic acids. Let's move to some common random names जो आपको पता होने चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। जैसे ये कंपाउंड जो है, ये जो अगर इसको मैं नंबरिंग करूं तो 1, 2, 3 and 4, so I'll call it as 2-hydroxy butanoic acid. This is commonly called malic acid. Malic acid is cis-butene 1,4 dioic acid. Malonic is a dicarboxylic acid. It is propane 1,3 dicarboxylic acid. Mandelic acid is 2-hydroxy 2-phenyl ethanoic acid. Fumaric acid is trans-2-butene 1,4 dioic acid. Phenol is commonly called carbolic acid. 2,4,6 trinitrophenol is called picric acid. H2CO3 is termed as carbonic acid. This is barbituric acid. It is a combination product of diethyl malonate and urea. Okay, it is a combination product of diethyl malonate and urea. This is in fact used as starting material of several hypnotics and sedatives used or you might have came across in chemistry in everyday life. Vitamin C
is called ascorbic acid. This is the structure given for vitamin C. Anthranoic acid is 2-amino-benzoic acid. Sulfanilic is 4-amino-benzene sulfonic acid. ये कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंट पास्ट में एक बार सिंपल ये क्वेश्चन भी आया था कि which of the following molecules do not have COOH but is still named as acid. उसमें ascorbic acid ऑप्शन था, carbolic acid ऑप्शन था, ठीक. There was option of barbituric acid, and similarly there was some actual carboxylic acid also. Okay, so let's move to the same, that is the common names that you need to remember. Common names of some dicarboxylic acid. Dicarboxylic acid का general formula आप लिख सकते हैं CH2N number of times COH terminal ends पर. तो अब अगर N की वैल्यू 0 हो तो ये कहलाएगा ऑक्सैलिक एसिड. N की वैल्यू 1 मेलोनिक, 2 सक्सिनिक, 3 ग्लूटारिक, 4 एडिपिक, 5 पैमेलिक, 6 सुबेरिक, 7 एजिलेइक. ओके, ये N की वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए. ये एक्रोनिम, इन सभी का अगर हमने पहला लेटर उठाया तो ये बन जाता है ओम्स गैप सा. ओके, इन सभी एसिड्स का अगर हमने पहला लेटर उठाया तो ये बनेगा ओम्स गैप सा. अब यहां ये याद रखते हुए भी कि इट इज ओम्स गैप सा, एन की वैल्यू बढ़ाने है चलना है, ये भी आपको याद रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 नॉट 1. इस पूरे के बाद भी कई बार बच्चे एरर कर देते हैं जब n की स्टार्टिंग पॉइंट 1 ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ 0. सो प्लीज रिमेंबर द एक्रोनिम स्टार्ट्स विद O. n की वैल्यू 0 O, एक्रोनिम आल्सो स्टार्ट्स विद O. ओके, सो इट स्टार्ट्स विद O. लेट्स मूव टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग करने की पावर है ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होंगे उनके पास O से अटैच H भी है, सो इट कैन एक्ट एज H बॉन्ड डोनर. ये जो कार्बोनिल है ये H बॉन्ड डोनर नहीं, लेकिन ये H बॉन्ड एक्सेप्टर तो हो ही सकता है दूसरे मॉलिक्यूल के लिए. तो इस तरीके की ये H बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाते हैं और इसलिए कई बार डाइमर के तौर से भी एग्जिस्ट करते हैं. ठीक, इस H बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट दूसरे कंपैरेटिव मॉलिक्यूल्स की तुलना में ज्यादा होता है. जैसे अगर हम 9 कार्बन्स तक की बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो ये लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जबकि इसके पहले जो अल्काइल हैलाइड या आपने अल्डिहाइड कीटोन, सॉरी हाँ इवन अल्डिहाइड कीटोन, तो वो सभी गैसेस होते हैं. दे हैव बैड स्मेल. ठीक, हायर एसिड्स आर स्मेल नहीं होती, दे आर ऑर्डरलेस एंड दे बिकम सॉफ्ट वैक्स लाइक सॉलिड्स. उससे भी हाई हम जाते हैं अगर और, तो दे मे बिकम अ रिलेटिवली मोर इंटेंसिफाइड सॉलिड्स. ठीक, अब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता ही है उसको हम थोड़ा डिटेल में अभी 2 मिनट बाद और डिस्कस करते हैं. C1 to C4 जो होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मिसिबल इन वाटर. हाँ, जैसे जैसे अल्काइल पार्ट जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में वो बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती चली जाएगी, बिकॉज द अल्काइल पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल बिहेव हाइड्रोफोबिक. ये वाटर से दूर भागने वाला पार्ट है, और कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट विल बिहेव एज हाइड्रोफिलिक, दैट इज इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर थ्रू H बॉन्डिंग. ठीक, ये जो मैंने स्पेशल ग्रीन में लाइन लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेंजोइक एसिड जो है ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है एट रूम टेम्परेचर इन कोल्ड वाटर. अगर आपने कोल्ड वाटर में डाला बेंजोइक एसिड को तो ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है. क्यों? बिकॉज द pH पार्ट ऑफ दिस इज डोमिनेटिंग ओवर COH पार्ट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड thus it is insoluble at low temperatures or in cold water. हाँ, आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कंपैरेटिव बात कर रहे हैं हम, बढ़ेगी. एंड दैट इज व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड एज मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन फॉर बेंजोइक एसिड्स. आप लोअर टेम्परेचर पे बेंजोइक एसिड को इनसॉल्युबल पा रहे हैं, हायर पे सॉल्युबल, तो जो भी मिक्सचर आपको मिलेगा आप उसे वाटर में डालिए और इसे हीट करिए, हाई टेम्परेचर तक लेकर जाइए. जो इम्प्योरिटीज होंगी दे विल रिमेन इनसॉल्युबल
और बेंजोइक एसिड वाटर में जाना शुरू हो जाएगा एट हायर टेम्परेचर्स. देन यू फिल्टर, रिमूव दोज इम्प्योरिटीज. नाउ क्लियर फिल्ट्रेट को आप ठंडा करना शुरू करिए, कूल करिए. बेंजोइक एसिड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर will crystallize out from this clear solution. So that is in fact a very important lab method for purification of benzoic acid from its impurities. Let's move to next point. That is the relative boiling point. हमने ये तो कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपैरेटिव दूसरे सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीजों से ज्यादा होता है ना. पर कितना और क्या सभी से ज्यादा होता है? तो नहीं. अमाइड्स जो होते हैं ना, और अमाइड्स भी कौन से वाले हमें चाहिए? RCONH2, जिनमें 2 H अवेलेबल है नाइट्रोजन पर, H बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है, उनको छोड़ दें तो बाकी सभी से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं. सबसे ज्यादा अमाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद नाइट्राइल, एस्टर, एसिड क्लोराइड, कीटोन, अल्डिहाइड, ये सभी प्लस माइनस आसपास ही रहते हैं. बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो ये जरूरी नहीं. ठीक. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एस्टर, असाइल क्लोराइड, कीटोन एंड अल्डिहाइड्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट आर सिमिलर एंड आर लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट. ठीक. यहाँ हमने कुछ डेटा कलेक्ट करके एग्जाम्प्लीफाई करा है सो दैट यू कैन गेट एन एग्जैक्ट आइडिया कि किस तरह का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर मिल सकता है. फिर भी मैं कहूंगी कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि सिर्फ अगर यहाँ पर अल्कोहल से 2 डिग्री ज्यादा है, हाइपोथेटिकली एज्यूम करें हम, से विद एनहाइड्राइड और विद एसिड क्लोराइड, तो हमेशा ज्यादा होगा. इट मे बी स्लाइटली हियर एंड देयर. या नाइट्राइल जैसे काफी क्लोज है 97, ये 97.4 है, तो ये सब नियरली इक्वल की जोन्स में जाएंगे. आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि इन एग्जाम्पल्स में अगर 1-8 डिग्री इधर उधर दिखे तो आप इस जनरलाइजेशन को मना कर दें, है ना. जनरलाइजेशन है, दे हैव नियरली सेम. तो फिक्स पिक्यूलियर एग्जाम्पल्स को लेकर आप इस चीज को डिस्टर्ब ना करें. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन हम सबसे पहले अल्केन्स से कैसे कर सकते हैं? ये मैं आपको हर फंक्शनल ग्रुप में ये 3 जो इनिशियल रिएक्शंस हैं बार बार याद कराती आ रही हूँ, फिर से याद करा रही हूँ कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ अगर आपने कॉपर पे 523 केल्विन 100 एटमॉस्फेयर, then answers are methanol. If the same methane is heated with MO2O3 in presence of oxygen, and then you will get formaldehyde. पर अगर आपने मैंगनीज एसिटेट ले लिया तो आपको एसिटिक एसिड मिलेगा. तो ये 3 रिएक्शन, कॉपर पे मिथेनॉल, MO2O3 फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन है तो फॉर्मल्डिहाइड, इथेन होता तो एसिटल्डिहाइड, मैंगनीज एसिटेट तो एसिटिक एसिड. ठीक. अगर यही आप कोई दूसरा अल्केन दिया जाए, ये नीचे अपन ने केस लिखा है कि अगर RCH3 दिया है तो आप RCOH जनरलाइज के तौर से रख सकते हैं. ठीक. अगर आपने टर्शरी ब्यूटेन लिया और उस पर्टिकुलर को KMnO4 के साथ हीट किया तो नॉर्मली तो अल्केन्स रिएक्ट नहीं करती हैं KMnO4 के साथ, बट इफ इट हैज अ पर्टिकुलर 3 डिग्री H तो KMnO4 इस 3 डिग्री H को रिप्लेस करके या OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीडेशन या यूं कहें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन दे सकता है. ठीक. नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स. अब एल्कीन से जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास एक से ज्यादा मेथड है, तो हम 1 और 2 दो फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना. सबसे पहले बाय ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस. अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करें तो जैसे अल्कीन है, ये बॉन्ड हम इस तरह से ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओजोन, एंड देन या तो सेकेंड स्टेप पर आपको सिर्फ वाटर लिखा होना चाहिए, जिंक एब्सेंट होना चाहिए, या क्लियरली H2O2 लिखा होना चाहिए. देन दिस पार्ट इज बिकमिंग RCOH एंड CH2 पार्ट इज बिकमिंग फॉर्मिक एसिड. ठीक. अगर सिर्फ H2O लिखा है तो स्टॉप द रिएक्शन एट फॉर्मिक एसिड. नाउ इफ दिस टाइप ऑफ अल्कीन इज देयर, देन अगेन सेम प्रोसेस. दिस लेफ्ट पार्ट RC डबल बॉन्ड O ये कीटोन बन जाएगा, और ये राइट जो अल्डिहाइड बनना चाहिए था वो एसिड बन जाएगा. दैट इज हाउ इट विल बी फॉर्म्ड. ठीक. बाय ऑक्सीडेटिव फिजन ऑफ अल्कीन्स
using acidic KMnO4 or acidic K2Cr2O7 along with heat. ठीक, या तो आप एसिडिफाइड KMnO4 ले लीजिए या एसिडिफाइड डाइक्रोमेट ले लीजिए, ये दोनों ही सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस अल्कीन्स को ब्रेक करते हैं। हाँ, पर KMnO4 अगर दे रखा है, और ये जो सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, देखिए यहाँ लेफ्ट में बन रहा है RCOH, ये राइट वाला टुकड़ा RCOH, बट ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ये बनना चाहिए था आपका ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, पर फिर भी आपको प्रोडक्ट में यहाँ कहीं भी ऑक्सैलिक एसिड लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड अगर बना भी है और कंडीशंस KMnO4 H2SO4 की हैं, तो it will be oxidized as CO2. That is why we have written CO2 in the product rather than oxalic acid. ठीक, let's move to preparation number 3rd from alkynes. This is similar to alkenes. Same way you can do either the ozone lysis or the oxidation with other reagents and break this to 2 moles of acid. Next preparation is using Grignard reagent. Grignard reagent हम alkyl halide से बनाते हैं। RX plus magnesium will form RMgX. RMgX की जब CO2 से रिएक्शन ली जाए तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए इसका मैकेनिज्म एक बार देख लें। तो RMgX plus CO2, this R attack carbonyl, RCO O minus MgX plus, राइट। अब इसमें हम अगर दोबारा RMgX ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, जबकि इस समय यहाँ रेजोनेंस के चलते दिस डेल प्लस इज नॉट सफिशिएंट टू अट्रैक्ट दिस R माइनस, सो फर्दर एडिशन ऑफ RMgX विल नॉट टेक प्लेस एंड देयरफॉर इसी स्टेज पर हम फॉलोड बाय H प्लस लेंगे और ये बन जाएगा RCOH, कार्बोक्सिलिक acid. ठीक, so this is how from Grignard we can prepare carboxylic acid. हाँ, ये आप जरूर ध्यान रखें कि जितना कार्बन का काउंट आपके ग्रिग्नार्ड में था उसकी कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन बढ़कर आएगा। If this was RMgX, this will be R plus 1. That is what we are saying. ठीक, you can make aromatic acids, that is benzoic acid, from arenes. Arenes in any aromatic compound having some alkyl or some functional group attached to it. यहाँ जो आप रिएजेंट यूज कर सकते हैं वो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट हो सकता है, हीटिंग सब में चाहिए, एसिडिफाइड परमैंगनेट हो सकता है, अल्कलाइन परमैंगनेट भी हो सकता है, KMnO4OH minus can also be used. Toluene, PHCOH, PHCH2R, PHCOH, PHCHR, COH. अब जब तक ये जो बेंजाइल पोजीशन है इस पर एक हाइड्रोजन है, इन केस ऑफ अल्काइल बेंजीन्स, आपको आंसर आता रहा बेंजोइक एसिड। जब यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं रहा बेंजाइल पोजीशन पर तो आपको बेंजोइक एसिड नहीं मिला है। ठीक, सो अल्काइल बेंजीन्स जब तक उनके पास इस अल्फा पोजीशन पर या बेंजाइल पोजीशन पर हाइड्रोजन है, बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्काइल ही ग्रुप हो, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे ये ब्रेक करके PHCOH दे सकता है, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करके दे सकता है। देयर कुड बी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लाइक बेंजल्डिहाइड विल गिव यू बेंजोइक। PHCH2NH2 treat it like OH only, so PHCOH. ठीक, PHCH2OH, PHCOH, PHCH2OR भी यही, कीटोन यही, एवरीथिंग इफ इज पोजिशन नेक्स्ट टू पीएच, आगे कितना भी बड़ा कार्बन जुड़ा हो, कोई भी ग्रुप हो, इट इज फॉर्मिंग बेंजोइक एसिड। ओनली इफ देयर इज नो हाइड्रोजन इन एन अल्काइल ग्रुप, sp3 अल्काइल ग्रुप, सिर्फ वहीं पर आपको बेंजोइक एसिड नहीं मिला है। ठीक, और इस तरीके से जो बेंजोइक एसिड बनाने की हम बात कर रहे हैं, इट इज कंटिन्यूड ऑन डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स ऑल्सो। जैसे ऑर्थो पे 2 CH3 है तो इट हैज फॉर्म थैलिक एसिड, ये देखिए। ठीक, आइसोप्थैलिक एसिड, आप देखिए टेरेप्थैलिक एसिड। नेफ्थलीन अगर आपने ले ली है तो नेफ्थलीन में एक रिंग इंटैक्ट रही, एक रिंग ब्रेक हो गई, यू हैव गॉट थैलिक एसिड। नेफ्थलीन में अगर सब्स्टिट्यूशन है तो द रिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है वो ऑक्सीडेशन में जाएगी। जैसे यहां देखिए ये रिंग में CH3 लगा है, CH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग,
सो यहाँ पर ये रिंग टूटेगी फाइनली फॉर ऑक्सीडेशन, ये इंटैक्ट। यहाँ नाइट्रो है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसमें ये बॉन्ड्स टूटेंगे एंड यू विल हैव नाइट्रो इन द फाइनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो। दिस इज फिनांथ्रीन। इसमें अगर हमने बात करी तो हमेशा 9-10 ही बॉन्ड टूटता है, ये बनेगा इस तरीके से एसिड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक, सो ये जनरल ऑक्सीडेशन ऑफ सो मेनी आपको एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं जिससे आपको बेंजोइक एसिड या सिमिलर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट आप बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड्स। अब प्राइमरी अल्कोहल्स आर वेरी इजी टू ऑक्सीडाइज। आप कोई भी रिएजेंट ले लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक कंडीशन, अल्कलाइन, न्यूट्रल, किसी भी कंडीशन में इट विल फॉर्म एसिड्स। आपको ये नहीं लेना, आप ले लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। अगर आपने एसिडिक मीडियम लिया है, ठीक, और उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो भी प्राइमरी अल्कोहल उसमें बनेगी एसिड। क्रोमिक एसिड एनहाइड्राइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनमें से हमने कोई सा भी लिया होता, अगर आपके पास RCH2OH है तो आपको RCOH मिलना ही है। यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड बाय दिस रिएक्शंस। ठीक, अल्डिहाइड्स का जहां तक सवाल है, अल्डिहाइड्स तो आर फर्दर इजी टू ऑक्सीडाइज देन इवन अल्कोहल्स। अल्कोहल से भी आसान है ऑक्सीडेशन करना अल्डिहाइड का, और इसीलिए उनके ऑक्सीडेशन के लिए आपको बहुत माइल्ड रिएजेंट जैसे टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग, बेनेडिक्ट, शिफ्ट्स, ये भी चल जाते हैं। टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, फेलिंग सोल्यूशन इज अल्कलाइन कॉपर सल्फेट स्टेबलाइज्ड बाय रोशेली सॉल्ट। बेनेडिक्ट इज अल्कलाइन कॉपर सल्फेट स्टेबलाइज्ड बाय टार्ट्रेट सॉल्ट्स। तो कोई सा भी लो, बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीडेशन का काम तो Cu2+ ये कर रहा है, यहाँ सिंगल +1, तो काम तो ये कर रहे हैं बट अलग अलग सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ठीक, दीज रिएक्शंस वी हैव ऑलरेडी सीन इन एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर, तो हम इन्हें रीओपन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बाय आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, क्या रिएक्शन है? अगर आपके पास मिथाइल कीटोन है और आपने उसे NaOI या NaOH+I2 में हीट करा, तो यू विल गेट अल्काइल पार्ट विल ब्रेक फ्रॉम हियर, तो ये बनाएगा CONA और ये टुकड़ा बिकम्स CHI3। ये जो CHI3 बनता है ये बहुत ही हेवी आयोडोफॉर्म प्रेसिपिटेट बनेगा, और ये प्रेसिपिटेट जो है, इसका अपीयरेंस जो है वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कंफर्मेशन ऑफ द ग्रुप्स जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं उनके लिए ये काम आता है। कौन कौन दे सकता है? हाँ, कोई भी मिथाइल कीटोन, 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, एसिटल्डिहाइड, ये देंगे। मैकेनिज्म एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर RCOCH3 है और इस पर आपने NaOH डाला, ठीक, तो बिल्कुल एसिड बेस से गुजरेगी रिएक्शन CH2- और इस पर अब आयोडीन अटैक कर RCOCH2I। ऐसा 2 बार और होगा, 2 more times, about 2 steps, है ना? तो ये बन जाएगा RCOCI3। जब ये स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप आ गया, अब ये एसिड डेरिवेटिव का बिहेवियर दिखाने लगेगा इंस्टेड ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। ठीक, सो दिस बॉन्ड विल ओपन OHCI3 और ये CI3 हट गया, ये बन जाएगा RCOOH plus CI3-। नाउ दे विल एक्सचेंज देयर प्रोटॉन और ये बनेगा CHI3, वो बनेगा RCO-। ठीक, this was in fact, this exact compound was in fact asked in JEE 2022. I'm talking about advance। ठीक, देखिए पाई बॉन्ड पर हेलोफॉर्म का कोई असर नहीं है। हेलोफॉर्म का असर सिर्फ मिथाइल कीटोन वाले पार्ट पर है और कहीं पर भी नहीं है। सो आयोडोफॉर्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये NCERT का एग्जाम्पल है जो एडवांस में भी पूछा गया, जरूर से इसे ध्यान से देखें। ठीक, हम बना सकते हैं किसी भी एसिड डेरिवेटिव से, क्योंकि सारे ही एसिड डेरिवेटिव जब हाइड्रोलाइज किए जाते हैं
तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आते ही आते हैं, है ना। ये G जो है ये हमने कहा है कि कोई भी एसिड डेरिवेटिव, अब जैसे ये G हो सकता है कि Cl हो, ठीक, OR हो, NH2 हो, OCOR हो, इनमें से कोई सा भी इस पोजीशन पर आ सकता है, उस हिसाब से इसका नाम बदलता रहेगा। तो अगर कंडीशंस एसिडिक है तो हमें सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड और Hg, ये यहां से बॉन्ड टूटा और टुकड़ा अलग हो गया। अगर कंडीशंस बेसिक हैं तो हमें RCO माइनस और G माइनस देखने को मिलता है, ठीक। हम एसिडिफाई करें तो RCO माइनस इज कन्वर्टेड टू RCOH। इस हाइड्रोलिसिस की ईज या रिलेटिव रिएक्टिविटी इस कार्बोनिल के डेल प्लस पर डिपेंड करती है। ये डेल प्लस जितना ज्यादा उतनी ये रिएक्टिविटी फास्ट या ज्यादा होगी। इसलिए ऑर्डर इज RCOCl, then anhydride, then ester, and then amide. ठीक, this is the order of heat. This is the order of hydrolysis of acid derivatives. ठीक, let's move to 9th. You can also have by hydrolysis of cyanides. This is again a very very important point. ठीक, this is hydrolysis of cyanides. अब देखिए ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड होता है, डिपेंडिंग ऑन मीडियम, या तो आपको एसिड मिलेगा या एसिड सॉल्ट, ठीक। तो अगर मैं एसिडिक मीडियम में ले लूं सबसे पहले कि एसिडिक मीडियम में कैसे होगा, तो CN मीडियम में एसिड अवेलेबल है तो शुरू में RC ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव बनेगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इससे यहाँ डेल प्लस आना ही आना है। अब इसमें हमने वाटर डाला, वाटर इस कार्बोनिल पर अटैक कर देगा, तो ये बन गया RCOH2 प्लस डबल बॉन्ड Na, ठीक। मीडियम फिर एसिडिक ही और ये भी H है यहाँ पर, तो दिस विल फॉर्म RCOH डबल बॉन्ड NH2, ये H इधर चला गया प्लस, ठीक। ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो होगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ऑफ RCOH positive single bond NH2, and if this loses H plus it will become RCONH2, तो रास्ते में आपके अमाइड तैयार हो गया, ठीक। तो साइनाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको इंटरमीडिएट अमाइड मिला है। यू हैव गॉट अमाइड एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, अमाइड रास्ते में बना है। हाँ, अगर हम इस अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करते, इफ यू डू फर्दर हाइड्रोलिसिस, लेकिन अमाइड का हाइड्रोलिसिस बड़ा मुश्किल है, पर अगर आप करते तो फिर आपको RCOOH, और क्योंकि अमोनिया साथ में बनती बट कंडीशंस आर एसिडिक, तो आप अमोनिया की रिपोर्टिंग नहीं करते, आप अमोनियम को रिपोर्ट करते, ठीक। तो दिस इज हाउ यू कैरी आउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। तो यही एनसीईआरटी में मेंशन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हीट नहीं दी हुई हो रिएक्शन में तो आप अमाइड पर ही आंसर रोक देंगे, और अगर हीट दी हो तो ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएंगे, ठीक। ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर अमाइड है, अमाइड में H3O प्लस हीट दिया हो तो ही वो एसिड और अमोनिया में टूटेगा। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज मेंशन इन द एनसीईआरटी। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी एसिडिक नेचर। क्योंकि यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन बन रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड CS बिहेव एज एसिडिक कंपाउंड्स टू इक्विवेलेंट RS वेरी स्टेबल। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इनके एज एन एसिड, सोडियम के साथ RCONA लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, NaNH2 के साथ अमोनिया गैस बनाते हुए RCONA, NaH के साथ RCONA प्लस वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ दे फॉर्म RCONA एंड रिलीज CO2। ये सारी रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसिंग वीक एसिड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स। देखिए यहाँ पर वीक एसिड अमोनिया, ये तो फर्स्ट तो रिडॉक्स है, वीक एसिड वाटर, वीक एसिड H2CO3 और HCO3 माइनस, ठीक। इनमें से सबसे फेमस या सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाली रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है आपको, POC में काम आएगी, ठीक। ये अपन ने पहले भी एनसीईआरटी के कुछ मेरी एनसीईआरटी के पेजेस हैं जो मैंने आपसे पहले शेयर करे हैं, एसिडिटी बेसिडी चैप्टर में मैं यहाँ फिर शेयर कर रही हूँ। हो सकता है हमारे कुछ नए ऑडियंस हों
तो बच्चों प्लीज आप जाकर एक रिविजन मेन सीरीज चल रही है, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फिजिकल आपको सारे के ही कुछ लेक्चर्स मिलेंगे, डे वाइज सीक्वेंशियली अरेंज्ड है, आप उन्हें देखें। और उसमें एसिडिटी बेसिडी नाम का एक चैप्टर जीओसी में मिलेगा, वहां ये पूरा पॉइंट डिस्कस्ड है। ये जो सारा आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, इसका बेसिक वहां पर मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी बढ़ेगी। यहाँ मैंने कुछ पर्टिकुलर डेटा आपसे शेयर कर रखे हैं कि किसका एसिडिटी ज्यादा, किससे कितनी ऑर्डर क्या होगा। ठीक, CCl3COH है 0.7, अगर 2 क्लोरीन हो गए तो pK इज 1.48, एक क्लोरीन 2.86 और एक भी नहीं तो 4.76। ठीक, तो एक बार इसे आप जरूर देखें। अब कुछ नया जो पिछले लेक्चर्स में नहीं करा हुआ है, तो pK ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, एक COH के लिए दूसरा COH -I की तरफ फंक्शन करेगा। जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी जा रही है तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे फॉर ऑक्सैलिक एसिड है, अब R ये COH और ये COH, जब ये H+ रिलीज करता है और ये CO- बनेगा और ये COOH है, तो इस अनायन के लिए दिस विल एक्ट एज अ -I या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये कॉन्जुगेट स्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए जितना ये COH के पास होगा कार्बोक्सिलेट, उतना Ka ज्यादा, pKa कम होगा। तो देखिए आप, ऑक्सैलिक एसिड pK1 इज 1.2, मेलोनिक 2.9, सक्सिनिक 4.2, ग्लूटारिक 4.3, एडिपिक 4.4। ये बहुत क्लोज आ गए हैं। रीजन बीइंग कि जब हम हायर की तरफ जा रहे हैं तो दूरी जो है वो बहुत वेरिएबल, या एक डिस्टेंस के बाद इंडक्टिव का असर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। इसलिए देखिए छोटे डिस्टेंसेस में जब वेरिएशन आया तो असर ज्यादा दिख रहा है। क्लियर? उसके बाद इट इज नॉट ऑफ एनी इंपॉर्टेंस एज सच, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां हम बात करें प्रैक्टिकली, आई वुड सजेस्ट कि pK2 इज इरेगुलर, इसको आप कुछ रेगुलराइज ना करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। pK1 आप इंपॉर्टेंट से देखें। pK ऑफ मेलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड, मेलिक एसिड का pKa1 आप देखिए इज लेस देन फ्यूमेरिक एसिड। व्हाई? बिकॉज कॉन्जुगेट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय H बॉन्डिंग, जबकि pKa2 फ्यूमेरिक का कम है, मतलब K ज्यादा है। ठीक, बिकॉज द सेम H बॉन्डिंग विल वर्क नाउ अगेंस्ट द डिसोसिएशन। तो यहां H बॉन्डिंग जो है वो रोल अदा कर रहा है कि ये ऑर्डर आपको क्यों देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इसका रीजन जो है वो H बॉन्डिंग है। एक जनरल रैंडम फैक्ट मैंने यहां आपसे इंट्रोड्यूस किया है कि बेंजोइक एसिड एंड टेरेप्थेलिक एसिड दे सबलाइम एट रूम टेम्परेचर। क्यों लिखा है ये फैक्ट मैंने? क्योंकि मेंस में कई बार ये क्वेश्चन आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सबलाइम एट रूम टेम्परेचर, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि फॉलोइंग में से किन को आप सब्लिमेशन से प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों सब्लिमेशन से प्यूरिफिकेशन में जा सकते हैं। हाँ, दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो नहीं, बट अदरवाइज यस। ठीक, अब आते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहला सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन मतलब अगर हमारे पास है RCOOH और इसको हमने NaOH+CO में हीट करा, ड्राई डिस्टिलेशन हीट कर दिया, तो RH बनता है और एक कार्बन की संख्या कम हो जाती है। जितना इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, रेट इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़े, रेट ऑफ दिस डीकार्बोक्सिलेशन बढ़ता चला जाएगा। दूसरी होती है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे RCOO के, अगर ये R1 ले लिया, फिर R2COO के, इनको एक्वस सोल्यूशन लिया हमने और इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इनका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो आपको R1 R1 भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है, R1 R2 भी मिल सकता है, और R2 R2 भी मिल सकता है। इस तरह से एक कपलिंग बनेगी, साथ में K2CO3 इज रिलीज्ड। तो आपको अल्केन्स मिलती हैं। हाँ, लेकिन कार्बन की संख्या अगर इसमें X है, इसमें Y है,
तो यहाँ x प्लस वाई -2 विल बी द नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक, अगर यहाँ x कार्बन है, यहाँ y कार्बन है, तब ये बात हमने कही है, इंक्लूडिंग COK। ठीक, तीसरा तरीका हो सकता है कि यू कैन रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्केन्स बाय रेड फॉस्फोरस HI। यहाँ पे कार्बन में कोई चेंज नहीं होता, इनको आप डायरेक्टली रेड फॉस्फोरस प्लस HI में हीट करें, आपको RCH3 बन जाएगा, यू विल गेट अल्केन। ठीक, और हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने क्लेमेंसन से रिड्यूस करने की कोशिश करी, जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो नो रिडक्शन, ये रिडक्शन नहीं होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, मेंस में एडवांस में जाने कितनी बार ये वहां प्रेजेंट है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो प्लीज रिमेंबर दैट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड बाय क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी सबसे पहली रिएक्शन है हंस-डीएकर रिएक्शन। ना हंस-डीएकर रिएक्शन इज अगेन अ स्टेप डाउन रिएक्शन, एक कार्बन इसमें कम होने वाला है। ठीक, नेट रिएक्शन है RCOOAg प्लस X2 in CCl4 H nu, you will get RX plus Ag2CO3 finally। ठीक, अब देखें यहां कैसे। सबसे पहले इनमें आपस में रिएक्शन होके बनता है RCOI। अब ये जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर की आ गई, तो ये होमोलिटिक फिशन दिखाता है, और RCO डॉट और X डॉट, ये अब तैयार हो गए हमारे रेडिकल्स। ठीक, ये रेडिकल्स में से जब CO2 हटा यहां से, तो ये R डॉट और ये CO2, now this R dot goes back to RCOOX, again this fission RX plus RCO dot, और यही स्टेप प्रोपगेशन की होगी, क्योंकि अगेन दिस विल गो लाइक हियर एंड रिपीट द सेम। सो ये स्टेप हो गई है इसकी चेन प्रोपगेशन। यही मैकेनिज्म सही है, कैसे पता चला? क्योंकि रेडिकल अगर बना है तो इस सेंटर में अगर कायरलिटी होती तो इट शुड बी लॉस्ट, यू शुड गेट अ रेजिमिक मिक्सचर, and in fact that is what is observed. Optical activity of chiral R is lost in this reaction। ठीक, और रास्ते में आपने कार्बोक्सिलेट से R डॉट बनाते वक्त, रादर RCO डॉट से R डॉट बनाते वक्त CO2 लूज करा है, so it is a step down रिएक्शन, एक कार्बन की संख्या कम हो जाएगी रास्ते से। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन होती है हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये अल्फा हेलोजनेशन की है। यहां पर आपको सीधे सीधे अल्काइल हैलाइड नहीं बन रहा, अल्फा पोजीशन पर हेलोजन इंट्रोड्यूस हो रहा है। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये पूछिए 21-22 में। RCH2COH हेलोजन विथ रेड फॉस्फोरस followed by water, you will get RCHX-COH। एसिड्स जो ये रिएक्शन देंगे दे मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, दे शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय क्लोरीन एंड ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन ये रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो बच्चों यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैल्शियम सॉल्ट ही हो, बेरियम हो, कैल्शियम हो या मैंगनीज, ये तीनों सॉल्ट जब ड्राई डिस्टिलेशन में डाले जाते हैं आपको अल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। यहां पर येलो से अगर मैंने कहा कि एक एसिड R1 और R2 वाला है, ठीक, ये R2 और R1 वाला है, तो कैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन से आपको R1 R2 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 और R1 R1 की कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी। ठीक, यू विल ऑलवेज रिलीज CaCO3 एंड यू विल गेट द रेस्ट एज अ कीटोन। हाँ, अगर आपका कोई एक एसिड सॉल्ट इसमें फॉर्मिक एसिड होता तो अल्डिहाइड बन सकता था, बट अदरवाइज यहां पर मेनली क्या बनेंगे? कीटोन्स। लेट्स मूव टू फिफ्थ, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम जब इनके रिडक्शन की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट 2016 का सवाल भी है कि विथ निकल हाइड्रोजन देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस वाज आस्क्ड इन 2016
जेई एडवांस्ड। ठीक, हाँ, आप इसे रिड्यूस करना चाहते हैं अल्कोहल, तो आपके पास दो ही अच्छे रिएजेंट्स हैं, या तो आप LiLH4 का यूज करें या B2H6 का। इनफैक्ट इन दोनों में भी, क्योंकि B2H6 इज वेरी वेरी सिलेक्टिव टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए ये बेस्ट रिएजेंट है, ये सबसे अच्छा रिएजेंट है। LiLH4 तो कई दूसरे फंक्शनल ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा, B2H6 हर एक को रिड्यूस नहीं करता, इसकी बहुत ही लिमिटेड चॉइस है रिडक्शन की, इसलिए B2H6 is preferred over LiLH4 if we have a choice. I wrote here again that Clemmensen reduction do not reduce carboxylic acid, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको 2-3 बार इस पूरे लेक्चर में याद कराऊंगी। प्रिपरेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो दूसरे एसिड डेरिवेटिव्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था कि एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं। हमने कहा था एसिड डेरिवेटिव मतलब RCOG, ये जी बदलता जाएगा और नाम ऑफ एसिड डेरिवेटिव चेंज होते जाएंगे। जैसे जब हमने कहा एसिड क्लोराइड, तो ये हो जाता है RCOCl। तो एसिड क्लोराइड अगर हमें बनाना है तो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जो है वो अल्कोहल की तरह बिहेव करेगा। ये जो OH है ये अल्कोहल की तरह बिहेव कर रहा है। तो अल्कोहल को जब मुझे अल्काइल क्लोराइड बनाना होता है तो आप PCl5, PCl3, SOCl2 ले सकते हैं, सेम वही तरीका, एंड यू विल गेट एसिड क्लोराइड। ये OH और ये OH चला गया, Cl आ गया, सिमिलर तरह के बाय प्रोडक्ट। और वही बात कि SO2 और HCl गैशियस हैं, इसलिए इस कन्वर्जन के लिए भी आप SOCl2 को प्रिफर करोगे एज कंपेयर टू PCl5 एंड PCl3। अनहाइड्राइड अगर आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड अनहाइड्राइड, तो आप उसे या तो H2SO4 के साथ हीट कर दीजिए या P2O5। P2O5 हीटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर आस्क्ड, बट आप H2SO4 हीटिंग में भी, H2SO4 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर हटाया और ये अनहाइड्राइड तैयार हो जाएगा। ठीक, यू कैन फॉर्म एस्टर्स। एस्टर बनाने के लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल्स हीट करने पड़ेंगे एंड ड्रॉप ऑफ एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम, जो या तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालो या कॉन्सेंट्रेटेड HCl की गैस डाल दो। इनमें से जो भी कॉम्बिनेशन आपको अवेलेबल हो क्वेश्चन में, आप इसका यूज करें। एंड आई हैव मार्क्ड विच OH and which H. It is not the acid which will lose H. It is the alcohol which will lose H plus. And this ester is formed. Esters have fruity smell. That smell will confirm the formation of esters. ये एसिड ने H प्लस से रिएक्ट करा, यहाँ मैकेनिज्म समझा रहे हैं। प्रोटोनेशन ऑफ एसिड, इस डेल प्लस पे वाटर का अटैक, ठीक, इस डेल प्लस पे वाटर का अटैक, ये बन गया। नाउ देयर इज अ प्रोटॉन एक्सचेंज, अंदर यहाँ प्रोटॉन का एक्सचेंज हो गया है इस तरीके से, तो ये बन गया OH2 प्लस OR डैश OH। ना ये वापस पलटा और वाटर चला गया, तो यू गॉट प्रोटोनेटेड एस्टर, लूज H प्लस एंड फॉर्म RCOR डैश एंड H प्लस इज रिलीज्ड। ठीक, सो यहाँ आप देख सकते हैं इस मैकेनिज्म से कि एसिड ने H प्लस नहीं, अल्कोहल ने H प्लस लूज करा है। एसिड ने देखा जाए तो पूरा का पूरा OH जो है वो इस स्टेज पे जाके देखो लूज करा है। ठीक, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स बनाने के लिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अमोनिया के साथ ट्रीट करना पड़ेगा या अमीन्स के साथ। अमोनिया के साथ आप ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले तो ये एसिड और ये बेस, तो कोई अमाइड नहीं बनेगा, सबसे पहले आपको सॉल्ट बनते हैं कोल्ड में। हाँ, अगर आप इसे बहुत ही स्ट्रांग हीट करेंगे तभी अमाइड बनेंगे बाय लॉस ऑफ वाटर। Otherwise, always you will have first ammonium salts. On heating, they will form amide. तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा कि इन्होंने हीटिंग दी है या सिर्फ कॉम्बिनेशन या सिर्फ रिएक्शन कोल्ड में देकर छोड़ दी। ठीक, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन आई हैव यूज्ड फ्रॉम NCERT। थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड में आपने अमोनिया लिया तो दोनों एंड्स पर पहले आप सिर्फ सॉल्ट बना देंगे, अमोनियम हेलेट। ठीक, आप अगर इसे हीट करेंगे तो दोनों अपना अपना अमाइड बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थैलामाइड। ओनली व्हेन इट इज स्पेसिफिकली मेंशन कि स्ट्रांग हीट करिए तब इसमें से भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी और अमोनिया निकलेगा, एंड यू विल हैव imide. That imide is relatively far more difficult to form than amide. तो पहले अमाइड बनता है, अगर फर्दर स्ट्रांग हीटिंग की जाए तो इमाइड
बनेगा. That is how you get amides from carboxylic acids. Now, what I am going to discuss further from here on is not given directly in NCERT or any book, but these are the points जिन पर question आते हैं. So these are extra inputs from my end, so that I think इससे आपके marks में कुछ improvement हो. आप PYQ जब solve करेंगे तो आपको इनकी जरूरत महसूस होगी. सबसे पहले heating of dicarboxylic acid. डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम हीट करें बगैर किसी और रिएजेंट की मदद से तो क्या बनता है. सबसे पहले देखिए, जब ये हीट होते हैं ना तो इंट्रामोलिकुलर अनहाइड्राइड बनाने की कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन इंट्रामोलिकुलर से बनती है साइकिल. तो साइकिल अगर 5 और 6 मेंबर हुई, अगर 5 और 6 मेंबर साइकिल बनी तो वो बन के एनहाइड्राइड पे रुकेगी. पर अगर नहीं बनी तो वो कोई और रास्ता लेगी. जैसे ऑक्सैलिक एसिड, अगर ये वाटर हटा तो ये तो 3 मेंबर बनती है, हाईली अनस्टेबल, इसलिए और टूट जाती है. CO2 अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग. अब आप देखिए CO2 भी गैस उड़ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड भी उड़ गई, और जब आप हीट कर रहे हैं तो वाटर भी तो उड़ ही जाएगा. तो इट विल बी अ कंडीशन ऑफ नो रेसिड्यू. आपने अगर सिर्फ हीट करा है ऑक्सैलिक एसिड को तो कोई भी रेसिड्यू पीछे नहीं बचेगा. ठीक. मेलोनिक एसिड, जब एक ही कार्बन पे 2 COH हों तो इंट्रामोलिकुलर chylation होता है. इसमें इंट्रामोलिकुलर 6 मेंबर रिंग, it loses CO2 and forms enolic which tautomerizes to acetic acid. है ना, एक CO2 चला गया. सक्सिनिक एसिड में अनहाइड्राइड स्टेबल, क्योंकि ये बना है 5 मेंबर और इसलिए इससे आगे कहीं कुछ नहीं जाएगा. तो सक्सिनिक एसिड से आपको अनहाइड्राइड बनना शुरू हुआ है. उससे पहले तक अलग अलग तरह की रिएक्शंस थी. ग्लूटारिक में 6 मेंबर अनहाइड्राइड, एडिपिक में हम ऐसे ही करेंगे तो अब ये 7 मेंबर्ड अनहाइड्राइड हो गया. 7 मेंबर्ड अनस्टेबल है, इसलिए फर्दर हीट करने पर इट लूजेस CO2 एंड फॉर्म साइक्लोपेंटेनोन. सिमिलरली पैमेलिक फॉर्म साइक्लोहेक्सेनोन. ठीक. दिस इज हाउ दे फॉर्म साइक्लिक अनहाइड्राइड्स एंड देन फर्दर कीटोन्स. अगर आपने अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स लिए तो एसिड COH, हाइड्रोक्सी OH, इनको क्या बनाना चाहिए, एस्टर. तो इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रामोलिकुलर एस्टर स्टेबल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल इंट्रामोलिकुलर बने. इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटर का कुछ है तो बिल्कुल वो बने. जैसे सबसे पहले इंट्रा का देखिए, गामा हाइड्रोक्सी एसिड, देखिए अल्फा बीटा गामा, ये आपस में यही रिएक्ट करके 5 मेंबर साइक्लिक एस्टर जिसको कहते हैं लेक्टोन बना पा रहा है. लेक्टोन यानी 5 मेंबर नहीं, एनी साइक्लिक मोनोएस्टर इज कॉल्ड लेक्टोन. यही अगर गामा की जगह डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड होता तो 6 मेंबर भी बनता. बट क्योंकि साइक्लिक एस्टर स्टेबल, लेक्टोन स्टेबल है, तो बस यही रिएक्शन रुक जाएगी. ठीक. जब ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, अल्फा पर OH है, तब इंट्रामोलिकुलर तो दूर दूर तक नहीं बन सकता, इंटर बनाया इन्होंने, है ना. दीज आर डूइंग इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हीट करने पर, और इस तरीके का साइक्लिक डायस्टर बनेगा जिसे कहा जाता है कॉमनली लेक्टाइड. तो साइक्लिक अल्फा हाइड्रोक्सी फॉर्म लेक्टाइड्स एंड गामा हाइड्रोक्सी फॉर्म लेक्टोन. बीटा हाइड्रोक्सी ना तो ये इंट्रामोलिकुलर स्टेबल बना पाएगा एस्टर, क्योंकि 4 मेंबर 1 2 3 4, और ना ये इंटर बनाएगा 8 मेंबर. इसकी जब हीटिंग होती है, व्हेन दिस कंपाउंड इज हीटेड, देन इट लूजेस अल्फा बीटा H2O and form alpha beta unsaturated carboxylic acid. ठीक है, it forms alpha beta unsaturated acid. You can repeat everything same from alpha hydroxy or rather from hydroxy acids to amino acids. सिर्फ आपको जो OH था उसकी जगह आप NH2 कर दीजिए, अल्फा अमीनो, तो you'll have cyclic diamide. If you have a gamma amino or a delta amino, you can have a cyclic amide. और साइक्लिक अमाइड का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल आप जानते हैं जिसका नाम है कैप्रोलेक्टम, है ना. इट इज अ साइक्लिक अमाइड. साइक्लिक अमाइड्स आर कॉमनली कॉल्ड लेक्टम्स. ठीक. अगर बीटा अमीनो एसिड है तो फिर वही चीज, ये पोर्शन हट जाएगा और यू विल हैव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स. ठीक. दिस पर्टिकुलर वाज आस्क्ड इन मेंस कि अगर ऑक्सैलिक एसिड की इथेनॉल के साथ या ग्लिसरॉल के साथ हीटिंग हो तो क्या बनेगा. ऑक्सैलिक एसिड इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. इस तरीके से हमने डालकर हीट करा तो ये दोनों एंड्स एस्टर बना ली. दिस इज अ डायस्टर.
और इस डायस्टर को जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं अराउंड 210 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये लूज कर जाएगा ये पूरा CO2 दो पार्ट और इथीन बन जाएगा। ठीक, ऑन द सेम लाइन अगर यही काम आपने ग्लिसरॉल से करा तो आपको आंसर आता है अलाइल अल्कोहल। टेम्परेचर जरूर थोड़ा बढ़ा हुआ है 210 से 260। ठीक, POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट क्योंकि कोई भी एसिड देता ही है लिटमस टेस्ट, तो क्या करना है आपको, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है या पेपर लेना है जिसके अंदर आप ब्लू लिटमस डालें। यू हैव टू ऐड ब्लू लिटमस। ठीक, ब्लू लिटमस ऐड करेंगे, लिटमस पेपर पे ले लीजिए या सोल्यूशन ले लीजिए। अब अपना जो अननोन लिक्विड है वो उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करें थोड़ा सा। ठीक, इफ इट वाज सॉलिड मेक इट्स एक्वा सोल्यूशन एंड देन ऐड। अगर इफ द ब्लू कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, तो याद रखें, ठीक, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये होगा। तो अगर ये ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हुआ, देन आप कंफर्म करेंगे कि या तो गिवन कंपाउंड फिनोलिक है और या वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट टेस्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट मतलब हम पहले ही कर चुके हैं कि RCOH प्लस NaHCO3 एंड इफ यू हैव RCONA तो डिजोल्व हो जाए, और H2CO3 जो कि अल्टीमेटली आपको H2O प्लस CO2 देगा। तो ये एफर्वेसेंस ऑफ CO2 कंफर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट टेस्ट इज द एस्टर। अगर हम एसिड लें, उसमें मिथनॉल इथेनॉल दोनों में से कोई भी लेकर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल 10-15 मिनट तक उसे बॉईल करें वाटर बाथ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड 10-15 मिनट, तब जाकर उसे आप एक दूसरे बीकर में, दूसरे कंटेनर में जहां एक्वस NaHCO3 और रखा हो, इस एक्वस NaHCO3 को डालने का पर्पस हमारा होता है कि जो भी एक्स्ट्रा H2SO4 या कार्बोक्सिलिक एसिड मीडियम में बचा है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और जब ये पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, तो अगर स्वीट स्मेल आपको आ रही है, फ्रूटी स्मेल, देन इट इज कंफर्मिंग कि एस्टर बना है, और फॉर्मेशन ऑफ एस्टर विद दीज अल्कोहल्स एडेड will confirm carboxylic acid as the functional group in unknown compound, right? As carboxylic acid group present in this unknown compound. So आप ये reaction use कर सकते हैं as a confirmatory test for carboxylic acids. ठीक, इसी के साथ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 1 जो है खत्म हुआ। यहाँ आपने ध्यान दिया होगा हमारा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ RCOH पर ही था। उसकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रिपरेशंस, कॉमन नेम्स, और हमने POC ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करी। इसके पार्ट बी में हम एस्टर्स, एसिड क्लोराइड, अमाइड और अनहाइड्राइड डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरह की हेल्प मिली हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डेफिनेटली अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।